Hello all and welcome back to Mathematics Schoolio. This is video 7 in 10 amazing JEE Advanced PYQ series. And in this video, I am taking a more than one correct question from JEE Advanced 2021 paper 1. It is from the topic complex numbers and I'll handle it in two ways. First one is students' favorite method. As far as I have seen, it is students' favorite method. And second one, as usual, the smart application of basic concepts that we cover in the chapter. So let's start. Here is the question that says that for any complex number, omega, c plus iota d, argument of omega belongs to minus pi to pi. So basically they have provided us that argument is to be taken from this interval. Alpha and beta are real numbers, which clearly says that when you trace them on real axis, when you trace them on eigenplane, it lies on real axis. The complex number z is x plus iota y, and it satisfies this condition. See, this is the basic condition, or you can say the most important part of the question, the condition which will help us in solving the question. The ordered pair x comma y lies on the circle. What do you mean by this line? This line clearly says that the argument of z plus alpha upon z plus beta equals to pi by 4. With this condition, the locus of z will be a circle represented by this equation, right? This is what they are saying. So what we have to do is, we just have to solve the question, identify the locus of z with this condition, compare the locus with the equation that they have provided us, and that's it. And then calculate alpha and beta. So fine, let's start with method 1. I'm going to start with method 1, which, as I told you earlier, most of the students' favorite method. What is that method? That method is replace z by x plus iota y. So they tend to solve every question of complex number using this substitution, which is, I would suggest that not always a good idea. Well, this question, I'm going to start with this method 1, and yes, it's fine. We can use this method over here, and we can solve it easily using the substitution. So let's proceed. What you have to do is, the condition that they have provided, argument of z plus alpha upon z plus beta. Z को I'm replacing with x plus iota y. So it will look like x plus iota y plus alpha upon x plus iota y plus beta. On the right hand side, it is pi by 4. Okay. Using the properties of argument, it will become argument of x plus alpha plus iota y minus argument of x plus beta plus iota y, and this is equals to pi by 4. What next? Next step is replacing this with the formula that we generally use when we use the Cartesian form of complex number, and further when we solve some questions of locus. Okay, so in the locus problems, argument of x plus alpha plus iota y can be replaced with tan inverse y upon x plus alpha minus tan inverse y upon x plus beta. Right hand side, it is pi by 4. What is the next step in the calculation part? Operating tan both the sides. So I'm just operating tan both the sides. Obviously, to remove this tan inverse wala term, I will operate tan both the sides. Abhi next, left hand side, what we are getting is tan of a minus b. Something like a minus b. Right hand side is going to be 1. So let's proceed. Left hand side is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. So 1 plus tan a tan b. You can see the calculation part. I'm just merging the two terms together, and right hand side it is 1. What next? Obviously the calculation part. So let's proceed with the calculation part of the numerator. Taking the LCM and simplifying the numerator, it gives me y times beta minus alpha. And coming to the denominator, it will become x plus alpha into x plus beta plus y square is equal to 1. You can notice that x plus alpha into x plus beta का factor from the numerator and denominator I have cancelled. अभी next step में क्या करना है? अभी हम cross multiply करते हैं. तो cross multiply करके you will get x square plus alpha plus beta into x. Just observe the calculation carefully. Plus y square is y times beta minus alpha. Rearrange the terms properly क्योंकि अभी locus मिल रहा है, and you can observe that locus जो आ रहा है ना, it looks like a circle. वो तो question में भी लिखा हुआ है कि we are getting the equation of the locus as the equation of a circle. तो अभी सारा terms एक तरफ shift किया और ये रहा equation to the locus.
सो हमारे पास जो इक्वेशन टू द लोकस आ रहा है वो ये रहा, जबकि इक्वेशन टू द लोकस प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये लोकस का इक्वेशन एक हमने निकाला, एक क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ऑब्वियसली द नेक्स्ट स्टेप इज कंपेयरिंग द टू इक्वेशंस। सो व्हेन यू कंपेयर द टू इक्वेशंस यू विल गेट अल्फा प्लस बीटा इज 5 और अल्फा माइनस बीटा हमें मिलता है -3। Along with that product alpha beta is 4. So 3 equations 2 variables means 2 को यूज करके वैल्यूज निकालेंगे, थर्ड से वेरिफिकेशन करेंगे। Solving these two equations gives me alpha is equals to, अब आपके पास अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 1, बीटा वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 4 और वेरिफिकेशन भी हो गया। अब अल्फा बीटा आ ही गया है तो लेट अस गो बैक टू द ऑप्शंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द क्वेश्चन। सो जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया बिकॉज अल्फा बीटा बोथ आर पॉजिटिव। बीटा 4, yes, D ऑप्शन करेक्ट है। कमिंग टू ऑप्शन नंबर बी, अल्फा बीटा 4, yes, we are getting that। सी ऑप्शन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास आंसर टू दिस क्वेश्चन टर्न्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। ये रहा मेथड 1। नाउ वी विल गो टू मेथड 2। सो मेथड 1 भी इजी है, यहाँ कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा नहीं था, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस मेथड एज वेल। बट एज आई टोल्ड यू मेथड 2 मीन्स आई एम गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, विच वी हैव लर्नड इन द चैप्टर। So now let us use that method. What is that method? सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में एक आर्टिकल आता है रोटेशन, जिसमें हम इंटरप्रिटेशन सीखते हैं कुछ इस तरह की इक्वेशंस का। आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस अल्फा अपॉन z प्लस बीटा इज इक्वल्स टू सम एंगल थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, π/4। तो अब मैं ये मानकर चलूंगी कि आपने रोटेशन अच्छे से पढ़ रखा है और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी आपको वेक्टर्स का आता है। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो हम ऑलरेडी चैप्टर में कवर करते हैं, यहाँ सिर्फ उसका एप्लीकेशन हो रहा है। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देती हूँ एंड आफ्टर दैट यू विल सी कि जो कैलकुलेशन पार्ट होगा ना वो हार्डली 3 स्टेप का है एंड हमारा आंसर आ जाता है। यानी क्या करें, सबसे पहले तो मैं इसे यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट लिखने वाली हूँ। आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस अल्फा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस बीटा इज π/4। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप है इंटरप्रिटेशन, जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। क्या करना है इसमें, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं। z प्लस अल्फा वेक्टर और z प्लस बीटा वेक्टर मार्क करने के लिए z प्लस अल्फा का मतलब होता है z माइनस माइनस अल्फा और z प्लस बीटा का मतलब है z माइनस माइनस बीटा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, माइनस अल्फा और माइनस बीटा को मार्क करूंगी। तो मैंने चलो मार्क कर दिया माइनस अल्फा माइनस बीटा। अभी दिक्कत यह है कि माइनस अल्फा माइनस बीटा में से बड़ा कौन है, यानी कौन से टर्म को लेफ्ट हैंड साइड और कौन सी टर्म को राइट हैंड साइड पर ट्रेस करना है। अब लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है, रियल एक्सिस पे, यानी पोजीशन ऑफ माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये भी तो पॉसिबल है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कौन सी पोजीशन ली जाए और ये ज्योमेट्रिकली कौन सा लोकस रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। हालांकि क्वेश्चन में हमें हिंट मिल गया कि ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है, फिर भी चलिए देखते हैं। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, पहली वाली को। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस अल्फा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस बीटा इज π/4। तो मैंने z को मार्क किया। अभी z का पोजीशन क्या हो सकता है, या तो वो अबव एक्स एक्सिस होगा या फिर वो बिलो एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब यहाँ पर रियल एक्सिस है। बट एक चीज क्लियर है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस अल्फा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस बीटा अगर आप लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको z और अल्फा को ज्वाइन करके वेक्टर बनाना पड़ेगा और वेक्टर का सही डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा। तो वेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन यहाँ काम आती है और अकॉर्डिंगली मैंने ये फाइनल माइनस इनिशियल करते हुए वेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन से एरो मार्क किया। सिमिलरली ये z प्लस बीटा का भी डायरेक्शन मार्क कर दिया। जब आपको एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स चाहिए तो जैसे वेक्टर में एंगल निकालते हैं अकॉर्डिंगली पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स, पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ टू वेक्टर अगर आपको निकालना है तो आपने एंटी क्लॉकवाइज मार्क करके एंगल को आइडेंटिफाई किया। कैसे लिखेंगे, अगर आप पॉजिटिव एंगल लिखना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में हमें लिखना चाहिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस बीटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस अल्फा एज सम पॉजिटिव आंसर। ठीक है, इस सिचुएशन में हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब ये पॉजिटिव आएगी तो ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस अल्फा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस बीटा पॉजिटिव चाहिए, यानी ये वाला केस रिजेक्टेड, z का पोजीशन यहाँ नहीं होगा। अब यही चीज मैंने पॉइंट z को बिलो रियल एक्सिस लेकर चेक करी
तो सेम सिचुएशन अगेन मैं जेड इन अल्फा माइनस अल्फा को ज्वाइन करके वेक्टर का डायरेक्शन मार्क करती हूँ. फाइनल माइनस इनिशियल, सो प्रॉपर वेक्टर का डायरेक्शन मार्क किया. एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, सो जैसे वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं वैसे डायरेक्शन मार्क करके एंगल निकाला. पॉजिटिव डिफरेंस लिखने के लिए फाइनल वेक्टर, फाइनल कौन सा है जहां पे एरो मार्क आ रहा है, ठीक है ना, ये येलो वाला एरो मार्क या एरो हेड जो जहां पे आया वो फाइनल वेक्टर है. तो फाइनल माइनस इनिशियल कैसे लिखा जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस अल्फा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस बीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू पॉजिटिव. यही तो चाहिए. According to question, I want argument of z plus alpha minus argument of z plus beta to be positive. अच्छा, पॉजिटिव में भी पर्टिकुलरली कौन सा एंगल? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई वांट दिस एंगल टू बी पाई बाय 4. ये एंगल हमें पाई बाय 4 चाहिए. ठीक है, ये पाई बाय 4 यानी ये पोजीशन ऑफ z एब्सोल्युटली फाइन. अब लोकस क्या है? लोकस ये कहता है कि आपने यहाँ पे इंटरप्रेट किया है माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा दो फिक्स पॉइंट्स है और z इस तरह मूव कर रहा है कि the line segment joining minus alpha and minus beta always subtends an angle of pi by 4 at z. ठीक है, इसका मतलब कि z का लोकस विल बी अ सर्कल जिसके लिए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग माइनस अल्फा माइनस बीटा एक कॉर्ड होगी. और इनफैक्ट क्या आंसर आएगा? द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल. क्यों मेजर सेगमेंट? बिकॉज एंगल पाई बाय 4 आ रहा है, राइट. ये एक मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल आ रहा है जिसके लिए द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग माइनस अल्फा माइनस बीटा कॉर्ड होगी. बट अगर मेरा आंसर ये आ रहा है यानी ये वाला सर्कल आ रहा है तो मेजर पोर्शन या फिर कहिए मेजर आर्क ऑफ द सर्कल है, इसलिए इसका सेंटर आप देख सकते हो कि तो बिलो रियल एक्सिस आएगा. बिलो रियल एक्सिस मेरा आंसर है. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे हैव गिवन अस द इक्वेशन ऑफ लोकस. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट लोकस? लेट मी शो यू. ये रहा, देखो ये इक्वेशन दी है उन्होंने. इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि सेंटर ऑफ द सर्कल इज -5/2 3/2. ये तो अबव एक्स एक्सिस लाई कर रहा है या अबव रियल एक्सिस लाई कर रहा है. अगर ये अबव रियल एक्सिस है इसका मतलब ये जो पोजीशन आ रही है ये हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी. क्यों रिजेक्ट करनी पड़ेगी? बिकॉज यहाँ पे ठीक है, ऑल्दो मुझे z का पोजीशन मिल गया आफ्टर मार्किंग माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, बट द पोर्शन ऑफ सर्कल दैट वी आर गेटिंग इज नॉट एग्जैक्टली मैचिंग विद व्हाट दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन, सो आई रिजेक्टेड दिस केस. अब यही दो सिचुएशंस में अल्फा और बीटा या फिर कहिए माइनस अल्फा माइनस बीटा की पोजीशन को चेंज करके भी देख रही हूँ. यानी आप देख लो ये वाले केस पर अब हम आ गए. तो सिमिलर टाइप ऑफ टू सिचुएशंस आएगी. हमने कहा z या तो ऊपर होगा या फिर z बिलो रियल एक्सिस होगा. अबव रियल एक्सिस में लेट अस क्विकली चेक अभी क्या सिचुएशन बनती है. ये एरो है या डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर z प्लस बीटा. ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई फॉर z प्लस अल्फा. यू वांट द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ दीज टू एंगल्स और दीज टू वेक्टर्स. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एरो मार्क करोगे. ये रहा एंगल, पॉजिटिव डिफरेंस है. कैसे लिखा जाएगा? फाइनल. फाइनल यहाँ पे क्या आ रहा है? z प्लस अल्फा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस बीटा. ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. ठीक है, हमें यही पॉजिटिव चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. और जैसा कि हमने फर्स्ट ये वाले केस में देखा था, अब हम कह सकते हैं कि इफ वी टेक z बिलो रियल एक्सिस तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस अल्फा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस बीटा कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा. यहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस अल्फा z माइनस बीटा का डिफरेंस नेगेटिव आता है, तो हम ये वाला केस रिजेक्ट करते हैं और ये पोजीशन ऑफ z को एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस अल्फा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस बीटा इज पॉजिटिव. यानी अगेन जस्ट लाइक द प्रीवियस केस you can interpret that z lies on the major segment of a circle, major arc of the circle, major segment of the circle for which the line segment joining minus alpha minus beta is a chord. z किस पे लाई कर रहा है? मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल पे लाई करता है जिसके लिए माइनस अल्फा माइनस बीटा को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट एक कॉर्ड की तरह काम कर रही है. ठीक है, अब ये जो सर्कल हमारे पास आंसर आया है ये सर्कल का सेंटर ऑब्वियसली अबव एक्स एक्सिस होगा. तो इट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में भी जो सर्कल का पोर्शन या सर्कल इक्वेशन हमें दी गई है उसका सेंटर अबव रियल एक्सिस ही लाई करता है. तो ये रहा आउट ऑफ 4 द पॉसिबल केस. अब देखो ये जो सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको की है ना, ये बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे हम रोटेशन में समझते भी हैं और रोटेशन में हम इसे पढ़ते हैं, इंटरप्रेट करना सीखते हैं. तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ये सारी इंटरप्रिटेशन आप बहुत क्विकली करोगे. अभी तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया, बट इंटरप्रिटेशन सीख लेने के बाद जब आप क्वेश्चन पे आओगे तो आप क्विकली इंटरप्रेट करोगे कि ये रहा सर्कल जो हमें कंसिडर करना है.
बट इंटरप्रेट कर भी लिया तो उसके बाद अल्फा बीटा कैसे निकालना है, यानी अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल मेथड 2 जो है वो अब शुरू हो रहा है, यानी कितनी कैलकुलेशन पार्ट आएगी। यानी once we have interpreted that this is the portion of circle जो हमारा लोकस आएगा, तो सेकेंड थिंग है प्रॉपरली ऑब्जर्व करना। मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आंसर जो आ रहा है ना वो एक सर्कल तो है, मगर वो सर्कल रियल एक्सिस को माइनस अल्फा और माइनस बीटा पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या हमारे पास इस लोकस की इक्वेशन है? यस एब्सोल्युटली, वी हैव द इक्वेशन ऑफ दिस लोकस। क्या दी हुई है? लोकस की इक्वेशन हमें दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये रही इक्वेशन टू द लोकस ऑफ पॉइंट z। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई लोकस की। अभी अभी हमने क्या इंटरप्रेट किया कि ये जो लोकस है, जो सर्कल है, ये रियल एक्सिस का क्या मतलब हुआ? y इक्वल टू 0। ये रियल एक्सिस को माइनस अल्फा माइनस बीटा पे इंटरसेक्ट करता है। यानी जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो आपके पास आंसर्स आएंगे ना वो माइनस अल्फा माइनस बीटा आएंगे। तो मैंने सॉल्व किया, x का वैल्यूज आया -1 -4। हमने माइनस अल्फा माइनस बीटा की पोजीशंस भी मार्क करी थी, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू बड़ी होगी और बीटा की वैल्यू छोटी होगी। इनफैक्ट माइनस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज सॉल्व करके अल्फा आ गया 1, बीटा आ गया 4। यानी ये तो फिर से वही आंसर्स हमने निकाल लिए हैं जो हमने मेथड 1 से निकाले थे। बट क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ते भी हैं और लर्न भी करते हैं, अगर उसका एप्लीकेशन पार्ट देखा जाए तो ये रही कैलकुलेशन। अब आप खुद कंपेयर कर सकते हो मेथड 1 और मेथड 2 में कैलकुलेशन पार्ट, और मेथड 2 में आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन पार्ट नहीं है। इजीली हमने y को 0 पुट किया, अल्फा बीटा निकाला और फाइनली कंक्लूड कर दिया कि भाई आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। सो जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज किया है ना, लेट मी टेल यू, इट इज वन ऑफ द IT's फेवरेट कॉन्सेप्ट ऑन विच यूजुअली IT फ्रेम क्वेश्चंस। ठीक है, सो होप यू एंजॉयड इट। Hit the like button and share the video with your fellow friends. Don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thanks for watching. Bye bye for now.